एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ अ rhombus whose area is 28 centimeter square and perimeter is 28 centimeter square 28 centimeter also. फाइंड करना है परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ अ rhombus. नंबर फर्स्ट, area of rhombus equal 28 centimeter square and the perimeter of rhombus is 28 centimeter also. Perimeter of rhombus equal 28 centimeter. Perimeter of rhombus equal 4 into side equal 28 centimeter. Then side of rhombus equal 28 upon 4, 7 is 28. Then side of rhombus equal 7 centimeter. फाइंड करना है, फाइंड द परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ अ rhombus. Then area of rhombus equal base into perpendicular equal area of rhombus. The base equal side of a rhombus find हुई 7 centimeter, 7 centimeter, 7 centimeter and also 7 centimeter. Find diagonal, the perpendicular diagonal of a rhombus. फाइंड करना है perpendicular diagonal of rhombus. Then base into height. Base 7 centimeter, height फाइंड करना है and area of rhombus equal 28 centimeter. Then height equal 28 upon 7, 4. Then h equal 4 centimeter. Then the perpendicular on rhombus फाइंड हुआ 4 centimeter. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नंबर सेकेंड में भी फाइंड करना है, फाइंड द परपेंडिकुलर डायगोनल ऑफ अ rhombus whose area is 10.2 centimeter square. Area of rhombus equal 10.2 centimeter square and each side is 6 centimeter and side of rhombus equal 6 centimeter. Side of rhombus 6 centimeter की है, 6 centimeter. फाइंड करना है परपेंडिकुलर h. h equal question mark. Then area of rhombus equal area of rhombus equal 10.2 centimeter square. Then area of rhombus equal side into height equal 10.2. Then side of rhombus equal 6 and perpendicular find करना है 10.2. Then h equal 10.2 upon 6. 6 1 जा 6, 4 remaining 4 decimal 42, 6 7 जा 42. Then height or perpendicular of rhombus equal 1.7 centimeter. Question number third.
Find the area of rhombus whose each side is 5 centimeter and perpendicular diagonal is 2.8 centimeter. Number third. Find the area of rhombus इक्वल क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। दिया गया है हुज ईच साइड ऑफ rhombus इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डायगोनल h इक्वल 2.8 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ rhombus। देन फार्मूला एरिया ऑफ rhombus इक्वल साइड इंटू हाइट और बेस इंटू परपेंडिकुलर इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर एंड हाइट perpendicular 2.8 centimeter equal 14 centimeter square. Area of rhombus equal 14 centimeter square. Number 4th फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ rhombus। rhombus जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, साइड सभी इक्वल हैं। अब इक्वल साइड स्क्वायर की भी होती हैं, लेकिन स्क्वायर का जो हर एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और rhombus का बेस एंगल का अगर टोटल करेंगे तब 180 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री का नहीं होता है। तो फाइंड करना है एरिया ऑफ rhombus। एरिया ऑफ rhombus इक्वल क्वेश्चन मार्क। गिवन है हुज डायगोनल 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। फर्स्ट डायगोनल 4 सेंटीमीटर D1 equal 4 centimeter and diagonal 2 equal 6 centimeter. Diagonal 2 equal 6 centimeter. Then area of rhombus equal 1/2 into D1 into D2. Diagonal 1 into diagonal 2. Area of rhombus equal 1/2 diagonal first 4 and diagonal second 6. Say 3 times equal 4 into 3 equal 12 centimeter square. Area of rhombus. Number 5. Question number 5. A rhombus field has each side 64 meter and distance between parallel side is 16 meter. एक rhombus है जिसकी हर एक साइड A, B, C and D is a rhombus which has each side 64 centimeter, 64 meter, 64 meter. And the distance between parallel side. अब ये साइड AB parallel to DC and AD parallel to CB. So distance between parallel side is, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है 16 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट हुज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ rhombus। अब जितना एरिया rhombus का है उतना ही एरिया एक स्क्वायर फील्ड का है। अब फाइंड करना है स्क्वायर फील्ड का एरिया, जो एरिया है उसका साइड भी फाइंड करना है। साइड ऑफ स्क्वायर
equal question mark. Then area of rhombus, area of square equal area of rhombus. Then area of square equal side square, and area of rhombus equal base into altitude or side into altitude. Then side square equal base 64 and altitude 16. Then side equal root 64 into 16. Then side equal 64 स्क्वायर होता है 8 का एंड 16 स्क्वायर होता है 4 का. Then side of square equal 32 meter. Question number 6. The area of trapezium is 91 centimeter square. Area of trapezium equal 91 centimeter square. And distance between parallel side is 7 centimeter. एक ट्रेपेजियम है. जिसकी दो साइड पैरेलल A, B, C and D is a trapezium whose parallel side is AB parallel to DC. And area of trapezium is 91 centimeter square and distance between parallel side is 7 centimeter. दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर का है. Then H equal 7 centimeter. And one parallel side is 8 centimeter more than the other parallel side. Let first parallel side equal x centimeter. First parallel side equal x centimeter. Then second parallel side is more 8 more than the other parallel side. Then second parallel side equal x plus 8 centimeter more. 8 centimeter ज़्यादा है. Find the both parallel side. अब दोनों ही पैरेलल साइड को फाइंड करना है. इक्वल क्वेश्चन मार्क. अब x वैल्यू फाइंड करेंगे तभी दोनों साइड का वैल्यू फाइंड होगा. अब फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 91 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में पहले ही दिया है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है जिसके अकॉर्डिंग फिर दोनों ही पैरेलल साइड की वैल्यू फाइंड की जा सकती है. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड इक्वल 91 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. पहली पैरेलल साइड को हमने माना है x और दूसरी पैरेलल साइड x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई h इक्वल 91. देन 1/2 x एंड x इक्वल 2x प्लस 8 इंटू h इक्वल 91. 1/2 इंटू, अब दोनों डिजिट में से कॉमन ले सकते हैं 2. रिमेनिंग x प्लस 4 इंटू h इक्वल 91. 2 से 2 कैंसिल. देन x प्लस 4 इंटू h इक्वल 91. अब जो हाइट दी गई है उसको अभी लिखा नहीं हमने. जो हाइट दिया गया है वो है 7 सेंटीमीटर. देन x प्लस
4 into 7 equal 91, and x plus 4 equal 91 upon 7. 7 1 ja 7, remaining 2, 21. 7 3 ja 21. Then x plus 4 equal 13. x equal 13 minus 4. 4 को साइड चेंज किया. Then x equal 13 minus 4 equal 9. Then the first parallel side equal x equal 9 centimeter, and the second parallel side equal x plus 8 more than the first parallel side. Then x plus 8 equal 9 plus 8 equal 17 centimeter. Answer. Number 7. Find the area of a trapezium whose parallel sides are 8 centimeter and 6 meter. Question number 7. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है जिसकी दो पैरेलल साइड, ट्रेपेजियम ए बी सी एंड डी. इसकी पैरेलल साइड दी गई हैं 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. देन फर्स्ट पैरेलल साइड इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड सेकंड पैरेलल साइड इक्वल 6 मीटर, डिजिट मीटर में है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 मीटर. दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 4 मीटर. फाइंड करना है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. देन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 sum of parallel side into distance or height or altitude, equal 1/2 sum of parallel side 8 plus 6, and the height between both parallel side is 4 meter. Say 2 times cross, equal 8 and 6, 14 into 2 equal 28 meter square. Area of trapezium equal 28 meter square. Question number find करना है 8. Find the area of quadrilateral whose one diagonal is 28.4 meter and the perpendicular drawn on it from vertex are 7.20 meter and 8.80 meter. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है. एक क्वाड्रिलेटरल whose one diagonal is 28.4 मीटर. जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी whose डायगोनल AC का जो डिस्टेंस है वो है 28.4 मीटर. 28.4 meter, and the perpendicular drawn it from the vertex of a quadrilateral are. So first perpendicular from A to O and B to Q. तो फर्स्ट perpendicular 7.20 meter and second 8.80 meter. अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल फाइंड हुए. एक ट्रायंगल है ACD एंड ABC. दोनों का बेस जो है वो कॉमन बेस है 28.4 मीटर. देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
area of quadrilateral equal area of triangle ADC, area of triangle ADC plus area of triangle ABC, triangle ABC. Then area of triangle equal 1/2 into base into height plus 1/2 into base into height. अब दोनों ट्राइंगल के लिए बेस कॉमन है, इक्वल 1/2 बेस AC इंटू हाइट पहले ट्राइंगल के लिए DO OD प्लस 1/2 इंटू बेस कॉमन है AC इंटू हाइट BQ इक्वल 1/2 इंटू 28.4 इंटू 7.20 प्लस 1/2 इंटू AC 28.4 इंटू BQ 8.80. अब चाहे तो पहले भी यहाँ से 1/2 AC दोनों ही तरफ कॉमन है तो कॉमन भी ले सकते हैं 1/2 AC. अभी डिजिट के अकॉर्डिंग कॉमन ले लें 1/2 इंटू 28.4 then remaining digit 7.20 plus 8.80 क्रॉस करें 14.2 then 14.2 multiply 7.20 and 8.80 equal 8 and 8 16 16 to 32 carry 3 16 4 64 and carry 3 then 67 carry 6 16 1 16 and 6 22 decimal 1 place area meter square answer 9 फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose one diagonal is 24 centimeter and the perpendicular drawn from vertex are 7.5 centimeter and 8.5 centimeter. सेम द क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही करना है. एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABC and D और जिसका डायगोनल एक डायगोनल जो दिया है वो है 24 सेंटीमीटर. D equal 24 centimeter and the perpendicular drawn on it from vertex D से और B से परपेंडिकुलर D Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे लाइन AC के लिए परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर 7.5 centimeter and P2 perpendicular 2 equal 8.5 centimeter. फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अभी इस क्वाड्रिलेटरल में हमें 2 ट्रायंगल्स फाइंड हो रहे हैं. एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD equal area of triangle ADC and area of triangle ABC. Area of triangle ADC
plus area of triangle ABC. Then area of triangle equal 1/2 into base into altitude plus 1/2 into base into altitude. Then 1/2 बेस दोनों ही ट्रायंगल के लिए बेस जो है वो कॉमन है, ए सी बेस है दोनों ही ट्रायंगल के लिए, इक्वल ए सी इंटू फर्स्ट ट्रायंगल जो कि ट्रायंगल एडीसी, एडीसी के लिए परपेंडिकुलर डीओ डी क्यू प्लस 1/2 बेस ए सी एंड परपेंडिकुलर बी आर, कॉमन लेंगे 1/2 ए सी। पिछले क्वेश्चन में कॉमन नहीं लिया था, वो डिजिट को ही कॉमन लिया था, अभी जो साइड है उसी को कॉमन लेंगे ए सी, रिमेनिंग डी क्यू प्लस बी आर। अब जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट करेंगे। ए सी डायगोनल के लिए 24 एंड फर्स्ट परपेंडिकुलर डी क्यू इक्वल 7.5 एंड सेकंड परपेंडिकुलर बी आर इक्वल 8.5, 12 times equal 12 into 8.5 and 7.5 equals 16, 16 2 जा 32, carry 3, 16 1 जा 16 and 3 19, 192 centimeter square. Then area of quadrilateral equal 192 centimeter square. आंसर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फाइंड करना है A trapezium has parallel side as 10 centimeter and 20 centimeter. एक ट्रेपेजियम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसकी पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर, ये वाली साइड पैरेलल है, ए बी सी एंड डी इज अ ट्रेपेजियम whose parallel side then AB is parallel to DC। तो पैरेलल साइड जो दी गई हैं वो 10 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। 10 सेंटीमीटर यहां से अगर इसको क्रॉस करते हैं, ये वाली साइड यहां तक 10 होगा, ये 10 सेंटीमीटर, रिमेनिंग पार्ट इक्वल 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले फाइंड करना है एल्टीट्यूड। एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, ए बी पर एक परपेंडिकुलर सी ओ। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड हुआ हमारे पास, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब फाइंड करना है सो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है। देन अभी इन ट्रायंगल बी ओ सी, अब इसमें जो नॉन पैरेलल साइड दी गई हैं, द नॉन पैरेलल साइड आर 10 सेंटीमीटर ईच, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस दिया गया है ट्रायंगल का बी सी इक्वल 10 सेंटीमीटर और बेस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना है परपेंडिकुलर। देन परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर ओ सी स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस बी सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। देन ओ सी स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इक्वल 100 minus 36, then OC square equal 64, then OC equal root 64 equal 8 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर फाइंड हुआ 8 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम equal 1/2 sum of parallel side into altitude equal 1/2. A parallel side 22 and 10. 22 plus 10 into altitude equal फाइंड किया है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से 4 टाइम्स इक्वल 32 into 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर फर्स्ट द फाइंड करना आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द आइसोस्केल ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल की हाइट है 8 सेंटीमीटर ये आंसर सेकंड हुआ आपका आंसर सेकंड